healthy and have made a good start. So that's really good to see. But so somebody happy to translate? Yeah. Well, could someone just summarise what we have here in terms of the rootstocks, the varieties, the tree spacings, the age of planting? Rootstock on side. M9. 106. 09. Yes. And spacing, I think it's 3 feet. 1 meter. It's very 2-year plant. According to the price. Rootstock. Yes. How you feel? This distance is appropriate or? The honest answer is that this is too close for 106. Yes. Yeah. This is M9. Yes. This This distance is to M9. an M9 spacing, exactly. And so, but we do have some M9 over here. Yes, yes. Yeah. What you have seen earlier. Yes. So yeah, the M9 trees, this is going to be successful. It's off to a good start. And we can tell the M9 because the rootstock is swollen, there's a larger diameter, and then we go to the reduction in diameter when we get to the sign variety. And yes, we know that this is a semi-dwarfing rootstock because it's a similar size here. Then we get to the गांठ जिसकी मोटी हो ना M9 का होता है जिसमें सिमिलर हो नीचे और ऊपर वो आपका अदर कोई भी हो सकता है अदर भी हो सकता है 11 भी हो सकता है. So it looks like we already have some swelling of the buds and you've put an oil spray on. वहाँ से ऊपर को आ जाओ वहाँ से बहुत रोड़ी पर को. Well, that बस इसमें आ जाओ. That brings us to the first tough decision to make. Let him finish. Jannu गाँव. वहीं सीधे आओ कोई So yes, this is not an appropriate spacing for a 106. Really, we have twice the tree density, or even 3 times the tree density that is going to be successful. इस rootstock के लिए distance काफी नजदीक है. ये 2 या 3 पेड़ के बाद होना चाहिए. 5 एक पेड़ एक्स्ट्रा लग गया मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस सर ज़्यादा नहीं है कितना होना चाहिए ये बीच में उड़ा दो इसको 5 दो पेड़ के बीच का डिस्टेंस 5-6 फीट ये तो बोलते हैं ना ये और वो actual gap Yeah, so what is this actual? Is this 4 feet? 4 feet. Yeah. no it may be 3 feet 3 to 4 feet. And what is the requirement to 106 Well, 106 should be at least twice this space. within 5 or 6 8 feet would be much then next better. 1111 Would be also similar. Yes. So we can see now already that these branches are intermingling. इकट्ठी होगी ना इकट्ठी होगी Already. इसकी क्या कहेंगे So and this is the thing to consider and to decide. Is it too late to lift every second tree and plant them somewhere else? And you know there's already bud movement, so it's getting late to do it. But if you had a site prepared and if you have water. वो हो तो क्या लेट है अगर है आपके पास 4 तो पट के ले जाओ ये कहते हैं कि भाई यहाँ का रूट करके ना दूसरी जगह चलो अब तो पॉसिबल नहीं है cutting से
नहीं एक्चुअल स्पेस बता दो ना कितना सब इसको तो कहां पे 4-5 फुट हो रहे हैं 8 to 5 फीट चलो कोई नहीं ठीक है नहीं बाकियों के लिए तो आगे के लिए पता चल गया ना जी कि किस रूट स्टॉक का कितना डिस्टेंस होना चाहिए ठीक है चलो यहाँ तो लग गया जो आगे के लिए है ना नेक्स्ट Okay, so our first most important principle for pruning young trees is, for pruning and training, is that we want to do the minimum amount of pruning. We want to encourage the tree to grow. We want to make use of all of the growth, or as much as possible of the new growth that it makes. कम से कम प्रूनिंग होनी चाहिए जितना हो सके और क्या नाम जितनी मैक्सिमम ग्रोथ हमारे काम आए उतना बढ़िया राइट सर And while we do have some thumb rules, sometimes we almost can break those rules in order to achieve our primary objective, which is development of canopy and early production of fruit. Because every time we make a cut on a young tree in the winter time, we are really delaying the development of fruiting capacity and delaying the time that it comes into fruit. थंब रूल जो होता है ना उस हिसाब से अगर चलें तब तो अगर हर वक्त कट मारते रहे हम तो फ्रूटिंग वगैरह लेट हो रही है इसलिए हमारे को कंप्रोमाइज करना चाहिए And okay, so some of the rules that we try to use are that we don't want to have branches that are below 2 to 2.5 feet. ब्रांचेस जो स्टार्ट होनी है और 2 और 2.5 फुट 2.5 फुट पहली ब्रांचेस स्टार्ट उससे नीचे नहीं But we see we have 3 branches that are below that height. And they have good wide crotch angles, so they are not likely to break. And this has been maybe tied down, and we see good development of spurs there. So we might be prepared to break one rule right away to say, can we keep these 3 branches at least temporarily, or at least use them for a period of time, and while we develop better and more branches higher up in the tree. वो तो है तो ना निकालनी है पर चलो ये इसकी ब्रांचेस का ये बहुत अच्छा है एंगल बढ़िया है इसलिए हम इसको रहने देंगे इसका जो एंगल है तो बहुत बढ़िया Sir, one more cause, no, people are, you know, around about 30-35 temperature, one stage during the summer session. Yes. So to protect our lower production, it has been always a great protection, this canopy. But the remaining part, the temperature excess. So people are using all those the fruiting of it's maybe no use. The lower branches fruit. नहीं मैं क्या कहने जब आप बैंडिंग करते हैं ना तो ये नीचे जमीन में छू जाएगी इसलिए ये 2.5 फुट होनी चाहिए ये रीजन होता है इसका ये ब्रांचेस है ही नहीं सर ये ब्रांचेस है ही नहीं है ये होते तो इन्होंने टनका देनी थी सारे टन ये चाहिए ये ब्रांचेस ऐसी चाहिए ये ब्रांचेस नहीं होने चाहिए थोड़ा सा नहीं जैसे 2.5 फुट से नीचे से ना ज्यादा सनी एरिया नहीं जैसे हमारा वहां पे लिपाई करो ना चलो 2 फुट पे कर लो ना उसका ठीक 2.5 फुट में करो ना उसके लिए पर ये जो बैंडिंग होती है सेवा हमारे रॉयल के लिए सुनो रॉयल के लिए जाते हैं हमारे यूं ठीक है यूं जाते हैं उसमें हम बैंडिंग नहीं करते हैं ये जो है ये डिफरेंट कंसेप्ट है इसको आप अगर जो बैंडिंग करेंगे ना तो ये वो ऊपर जाने जमीन में इसलिए बोलते हैं ये ऐसे देखो उसमें तुम फिरे ना तो ऊपर ही जा रहे हैं हमारे ये बैंडिंग बढ़ रही है कैरी ऑन Yep, sure. Okay, so we talked about these 3 branches that have good angles, but that really they are too low. Then we have 3 branches that have they are better height, but each of these have a very narrow and if we were to bend these branches out this way, they almost certainly would break. Yes, definitely it will be Shear off, yes. So what can we do? One option, if we really want to see if we can keep the only branches we have at the correct height, would be to bend them not away from the trunk because they would break, but to bend them to the side. So for example, and we can give the branch a stretch before we bend it. yes
and to get the wood ready to bend. And now we can bend it and it hasn't broken. अगर यूं को करेंगे तो टूट जाएगी, पर ये बेस्ट तरीका है अगर थोड़ी साइड में बैंड करो, क्योंकि इसका एंगल जो है ना यहाँ से नैरो एंगल है। फिर ये कंपटीशन भी दे रहा है लीडर को ना जल्दी। वो तो मोटा हो गया ना ये तो राइट So what's your लीडर को पता भाई साहब फर्क ना, लीडर तब जो ऊपर होगा नहीं यहाँ से निकलेगा सर, लीडर को पड़ेगा सर, नहीं सर, हम लोगों ने खुद काम करा, इतना कहाँ से करेगा सर, भाई मेरे ये गट्ठे हैं यहाँ, ये लीडर को कितना वीक बनाया, ये इतना पीछे सेट है ना, कंपटीशन के लिए बोल रहा हूँ, वीक के लिए तो ठीक है, पर मैं तो कंपटीशन के लिए बोल रहा हूँ। right, this is the option, we can bend in this way. Yes. So again, it's not ideal, but we're making the best of the situation. पूरे छूट नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से बोला कि इसका यूं कर सकते हैं, जो नहीं होगा ना, अगर आपकी यूं है टूट जाएगी, ऐसे नहीं करना, ये यूं करना, थोड़ा इसको ना धीरे धीरे नोचिंग भी करी जा सकती है सर, थोड़ी सी इसके साथ अगर बैंड करना तो वहाँ नोचिंग का किसमें ये चीरे मारने काय के लिए चीरे मारने वो बैंड करना चाहते हैं ना इसको, नहीं ऐसे नीचे से कट बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, हो जाती है वैसे हो जाती है। राइट सर। Okay. Now, these trees have been pruned. सुनो सुनो एक मिनट, So there have been some cuts made here. 1, 2, 3, 4. Yeah. So not unpruned. And it would be better if we had kept this one, because then when we bend it down, we also get more fruit. And we bend this down and we get this इसको one रख as सकते हैं, well. अगर हम पैसे बेंडिंग करते हैं ना, इनको रख सकते हैं। This branch here is more of a problem. But it does look as if it's been headed maybe a year ago. That made a short stub, and that's made that very stiff there. So I think if we try to bend this, It'll break. it probably would break. It's going to be really hard to do anything with this branch. Yes. So for that reason, because I don't think we could bend it, if we bend it here, it'll break where it was cut, or it'll break back here. So really, I don't think we can do anything with this branch. Also, the diameter of this is getting very close to the Can diameter. we remove this branch? Yes. Bevel cut, Yes, will remain the stub over there. Well, That's the option also. and also it's still quite low. If we want regrowth, we would use a bevel cut. So I'll do a big. ये बना के ये यहाँ से हमारे को दोबारा ये देगा जी, अब इसको ये ना कंपटीशन वो अपने हिसाब से वीक लेटरल देगा यहाँ। ठीक है। But if कल मैं निकाल नहीं हो गया। we could say that's because that's close to the ground, we really don't need replacement growth from that. So इसको हमारे को जरूरत नहीं हटाने। so we actually could cut it closer. Closer. So that we There's won't have any branch. But there could be, if there is regrowth from here, when the shoots are small, they could be removed. Because we don't want anything from that. इसका कैंकर का सर क्या होता है, अगर आप कॉलर रखते हैं ना, ये तरीका होता है नीचे से, उससे कवरिंग जल्दी आती है। अगर आप बिल्कुल शेटो काटी ना, तब लगता है कैंकर। निचली साइड होते हैं, रिंग होते हैं यूं। ये जो देखो इसमें रिंग है, ये रिंग जो है ये इसको फिल अप करती है। Such thick cuts over here, it is infected by canker. So what I am saying कि we have to keep this part. पहले काटते थे यहाँ से ना क्लोज, उससे लगता था कैंकर। Sailing is part over there because You're right. Yeah. थोड़ा कीड़ा खोलो है जैक। Hey Rana, how are you? Finally reached. Yes. So कट रहा है। कट रहे हैं, प्रॉपर्ली इसको प्रॉपर्ली। क्या कर रहे डॉक्टर साहब? इनफॉर्मल डिस्कशन शुरू करें, मतलब संचालन शुरू करो। चलो कर दिया। So the other thing about I think I've nearly finished the pruning. I've decided to live with these, even though they're too low, and we're going to bend these too. The timing of bending, now it's too early to bend. If we bend now,
then we're going to get bright shoots. अभी जल्दी है So बैंड करने के लिए अभी जल्दी we're better to wait for say a month after bloom or yeah, फ्लावरिंग के बाद at the end of flowering from then on, or when we have some growth. Yeah, फिर भी sort of sprouts निकलेंगे April or May, sometime there, and also the wood will be more flexible. राइट आ गया सर What जो about इसने these, बोला जी एक मिनट सर रुकेंगे जी क्योंकि पता क्या हो रहा है इनफॉर्मल होती जा रही ना तो एक एक करके बाकी लोगों को भी आ जाए सभी अंग्रेजी समझ ट्रांसलेट कर रहे हैं अच्छा मैं होता हूँ वरना सर साथ में आई एम सॉरी मुझे ऐसा लगा कि सर नहीं नहीं सर मैं आपका आभारी हूँ मेरे को जगह नहीं पता लगा आ गया सर सबको समझ क्या बोला जो इन्होंने चलो आप बहुत रिपीट करो सर जो बेंडिंग है ना सर मैंने बीच में क्यों बोला सर सॉरी बेंडिंग अक्सर हम करते हैं कि सीजन के शुरुआत में कर देते हैं लेकिन जब हम शुरुआत में करेंगे तो वाटर शूट सीधी कड़ी डंडे आने शुरू हो जाएंगे वो आराम से खुला डुला घेरा रखो कोई चक्कर नहीं तो नॉर्मली जो बेंडिंग करनी है ना सर वो लगभग ग्रोथ के 1 महीने के बाद तक करनी है क्योंकि फिर आपकी जो शूट्स हो जाएंगी ना तब आप सिलेक्शन पे भी जा सकते हैं वरना अगर आप अभी कर देंगे तो जो ये पोर्शन है ना बेंड वाला यहाँ से सबसे ज़्यादा खड़ी ग्रोथ आएगी और जो मैक्सिमम फ्रूट होता है वो सीधी ग्रोथ पे होता है खड़ी ग्रोथ पे फिर आप स्पर बनाने के लिए और 1-2 साल बनाओगे या उसको निकालोगे तो वो है कि बेंडिंग लेट क्यों जानी है अगर हम लेट जाएंगे तो वो खड़ी ग्रोथें कम आएगी पहले जाएंगे तो वो ज़्यादा आएगी फिर आपको अगले साल फिर से मैनेजमेंट यहाँ की कंडीशन में कौन से मंथ में यस द क्वेश्चन है do I have told after first month of growth, but at what stage do you believe? At what stage? When the shoots on the tree are about this long, a month after flowering. मंथ आफ्टर According to Flowering elevation, के- people are asking according to elevation. देखो इसमें क्या करना है जब आपके फ्लावरिंग शुरू होती है उसके 1 महीने के बाद थोड़ा हमारा लेट जनरल रूल पकड़ के हो गया रखना फ्लावरिंग के अपने लिए कम रूल हो गया ये महीना मत ढूंढो जब मेरे यहाँ फ्लावरिंग शुरू होगी उसके 1 महीने के बाद यस कैरी ऑन Okay, so we don't advocate any heading cuts. Certainly on the fruiting branches. There has been a heading cut made here last winter, I'm guessing, and we've seen it as helping to force some shoots here. Yeah. Is that being cut? Yes, they all being cut. Right. Yeah, and again, I don't think it's Is it right or not wrong? a good idea, not necessary, and not helpful to shorten like this. We just want to let these grow, not to shorten them. But yeah, it's okay for a gentle heading cut of this leader, as has been done with the other leaders How here. much? I'm saying I think probably reducing it by about half. Yeah. So let's just check. Yeah, approximately. It's not precise. कल में ले लो जो The other thing we want to do is we want to encourage any of these buds to grow vegetatively. So it would be useful when, as this comes into bloom at balloon stage, to cut off the flowers. So we remove any competition for these buds. We don't want them to put energy into developing fruitlets. We want to push them into growth. should I take यस I'm not sure who's the translator today. He is replacing these. He's jumped in. चलो कोई सा भी कर दो जी थोड़ा अब इसमें सर जो कंपटीशन नहीं है यहाँ नहीं ऐसी कोई टेंशन नहीं लो सर मैं तो खुश रहूंगा यहाँ कोई और करता रहेगा ट्रांसलेट ही करना सर इसमें जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है ना जी प्रूनिंग का हम लोग उसमें हेडबैक स्टाइल पे जाते हैं कि जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो हम उसमें हेडबैक्स बहुत लेते हैं लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं जब हम एचडीपी में जो ये सिस्टम एडवोकेट करते हैं होता है टॉल स्पिंडल सर उसमें हम लीडर को एक ही रखेंगे सर बाकी के सारे जैसे हमने देखा ना सर जहाँ पे भी हेडबैक किया है ना जी वहाँ पर ग्रोथ आती है
लेकिन जो टॉल स्पिंडल में है हम वहाँ पर पतली ब्रांचेस रखेंगे 5, 6, 7 साल तक की, उस पे फ्रूट लेंगे। तो जितना हम हेडबैक करेंगे सब ब्रांच लंबी दौड़ जाएगी। लंबी दौड़ेगी तो जब आप बेंड भी करोगे ना सर, तो भी आधी से ज़्यादा ये ब्रांचेस आपस में एक दूसरे का स्पेस खाएंगी। तो जो इनका सिस्टम है उसमें हेडबैक कट्स नहीं है। साथ में जो यहाँ पर ये क्लिक प्रूनिंग है ना सर, ये क्रीवी देखो हल्के हल्के टिप्स उड़ाए हुए हैं, ये भी आजकल काफ़ी चल रहा है अभी। जब हम क्लिक करते हैं तो स्पर फॉर्मेशन होती है भाई वहाँ पे, लेकिन अगर हम इसको क्लिक नहीं करेंगे तो भी तो स्पर फॉर्मेशन होगी। लेकिन क्लिप करने के बाद हम एक स्प्रे के लिए बढ़ा लेते हैं, इसमें पेंट के लिए बढ़ा लेते हैं, साथ में अपनी लेबर भी बढ़ा लेते हैं सर। अब दूसरी चीज़, जब हम इनको किसी को नहीं छेड़ेंगे ना सर, और साथ में इसने किया क्या है, इसने सेंटर डोमिनेंट रखने के लिए किया है, ये जो ऊपर कट दिया है, जो हमारी डिजायर्ड हाइट है वो अचीव करनी है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर ब्लाइंडनेस शुरू हो जाएगी, यहाँ स्पर फॉर्मेशन हो रही है अगर आप देखो। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए डंडे, है ना जी, फेदर बनाना ना जी हमने तो यहाँ पर। अब फेदर बनाने के लिए ये बोलता है कि जब फ्लावरिंग स्टेज आएगी तो ये फूल काट देने हैं। जो न्यूजीलैंड वालों का सिस्टम है, ये लोग कटपट के बजाय रेगुलर बायोलॉजी को एक्सप्लॉइट करके खेलते हैं कि अगर उसी बायोलॉजी में बिना कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा वो किए कट लगाए, अगर इनको फेदर निकल जाए तो नॉर्मली क्या करेंगे, या तो अभी इसके स्पर उड़ा देंगे जी, या कैन वी गो फॉर स्पर रिमूवल एट दिस टाइम? Sorry? To encourage branching, can I go for spur removal this time? No, we go for flower removal. फूल को निकालेंगे हम, इसके तो लॉस हो जाएगा ना, फिर यहाँ निकलना ही नहीं कुछ, फ्लावर यहाँ निकलना ही नहीं, फिर बाद में काट देंगे, यहाँ तो डंडा कहाँ निकलना है। जो फूल होगा ना उसको निकाल के फिर जो उससे आगे ग्रोथ आएगी उसको कंटिन्यू करना। What do you suggest? इसमें हमने तब काटी, अच्छा, आपने ग्रोथ के लिए फूल आ जाएगा इसमें, फिर फूल आ जाएगा। फूल निकाल देना, पहले ही काट लिया। चलो निकालो, छोटा पोर्शन है ना, इसको तो Okay, so the suggestions that, Sir, well, we can have ये one sir biggest conversation. variety है sir। हाँ जी, इन दिस वी कैन वर्टिकल एक्सिस में काम करें कि हम स्पिंडल टेक्निक में काम करें। अभी तक जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो है ही टॉल स्पिंडल सिस्टम। नहीं तो ये वेगरस वैरायटी है ना, तो आप इसको वेगरस की तरह काटो ना। अगर आप इसको आप मतलब इस तरीके से अगर M9 की तरह काटोगे तो हमारे को प्रॉब्लम होगी सर उसमें समझने में। ये तो 106 है ना, तो सर अगर इसको इसके हिसाब से काटो, M9 के हिसाब देखो से बॉस, अगर हम इनको सबको बड़ा रख के चलते हैं ना, तो ये आ गया समझ गया ना आपका मैं। मॉडिफाइड लीडर। जब मैं बात ही टॉल स्पिंडल की कर रहा हूँ तो क्यों मेरे को बोल रहा है कि तूने बॉस मॉडिफाइड करना है, पहले समझाओ। ये होने दो 106, ये वैरायटी भी गरस होने दो। लेकिन जब आपने बेंडिंग करनी है ना, बेंडिंग करनी है ना, लीडर ये रह गया, ये आपका फेदर है, आपने यहाँ से यहाँ तक फ्रूट बनाना है। इसको तो मल्टी लीडर नहीं बना रहे ना। नहीं, शुरू में बोला ना, शायद आप नहीं आए थे कि ये बहुत नजदीक है, यू हैव टू मूव टू प्लांट फ्रॉम दिस। वो नजदीक क्यों, देखो इसको बेंड करो आप। हाँ, नहीं, अगर ये वाला फेदर कोई भी बेंड होगा ना, अब ये विगोरस रूट स्टॉक है और ये लगाया हुआ आपने 1.5 मीटर पे, 1.5 मीटर, 1 मीटर है। तभी पता लगेगा ना। ये शुरू सिस्टम में है बोला भाई। कि आपकी 2 पेरियर मूव करो, जिसकी साइड बदल दो, ये बहुत नजदीक है। कंसेप्ट जो है डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए था इसका। कॉन्सेप्ट इसलिए होना चाहिए था कि 106 और ये है 0 माइने। ये देखो एक सीजन की सेकंड की आई ना, तो देख पूरी आ गई, 1 फुट से ऊपर है, ये हाईली विगरस है, तो दिख रहा है ये नाइट्रोजन ज्यादा। पर इस पे फ्रूट लगाने के लिए इतनी जगह मांगेगा ना ये, है ना जी। अगर इस पे पूरी बियरिंग करनी है तो फिर उस लिए खोलो ना इसको, फिर वो इसलिए कह रहा है, ये नहीं सिस्टम के लिए। He means to say is, sir, excuse me, sir. He means to say is, should we follow tall spindle on this 106 rootstock or vertical axis system? It's probably better to think of it as axis for a germine on 106, because the vertical axis system was initially developed for trees of a bit more vigor and a bit more size. वर्टिकल एक्सिस 106 में। Yes, but in some ways we shouldn't get too hung up about the names of the systems. The important things, I think, are really just the way we allow the development of the canopy, and whether it's tall spindle or vertical axis, the same kind of approach is going to be used, which is the things we've discussed: minimum pruning, bending of branches,
no click cuts. The French don't do, they developed the vertical axis. They never did click cuts. That's a Dutch idea, which maybe is good in Holland, but here in Himachal with all your sunshine, with all your vigour, really this is not helping. I don't think. Late fruiting होगी ना जितना हम करते रहेंगे clicking. It's a natural process for the apple tree to develop spurs. It takes 2 to 3 years. Main thing is that we have to get fruit from them. Yes. कर सकते हैं ना And I सीधा 11 सीधा 11 इसमें तो सीधा वो तो तब जब ऊपर चढ़ेगा तब बैंड हो सकता है अभी सीधा 11 है इसकी लेंथ देनी पड़ेगी and I think it would be better. में बेंडिंग करनी पड़ती शुरू करनी पड़ती प्रैक्टिस 6 इंच से टूथपिक से कर लो तो टूथपिक से 6 इंच से वो क्राउच एंगल क्राउच एंगल स्पीक अप राइट साइड इसके बेस्ट ही है जो बिल्कुल I think it would be better if you think along these lines. If I do this, I'm delaying the fruiting. लेट हो रही fruiting. And if you want to delay the fruiting, then you do that. But if you want to encourage the development of your canopy and make use of all of the growth that the young tree makes, then just let it grow and train the branches and the fruit will come. ये आया सर समझ में एक और क्वेश्चन पूछना है जैसे मान लो ये ब्रांचेस हमने फैला दी, ये रिन्यू भी करनी पड़ेगी जैसे M9 पे करते हैं ना, बार-बार रिन्यू 2-3 साल बाद. Yes, his question is, since this is a 106 है ना 106 है ना, this is a vigorous rootstock. Now his question is, would they have to go for renewal pruning? Renewal of Yes. If it's M9, if it's M9, the growth is done. He's saying, na? Then can we click them? नहीं नहीं what I नहीं mean to say As I think you can. Okay. आपने ये पूछा ना कि रिप्लेसमेंट प्रूनिंग करनी है इसकी नहीं नहीं M9 अगर हो ना excuse me sir, what I mean to say is it necessary to renew the branches in vigorous rootstocks? Well, yes. Again, I think let's try and explain what is renewal pruning, just to make sure we're talking about the same thing. So, in our understanding, yes, renewal pruning is the way to go. And what is renewal pruning? We should ask everyone to put their phone on silent or vibrate. yeah. Yes, sir. Okay, so what is renewal pruning? Silent में डाल दो फोन जी है नहीं Renewal pruning really is how we manage the branches through their life. And so for the axis, modified axis or central axis and even tall spindle, really we regard that the permanent structure of the tree is the leader, and every fruiting branch we can replace or renew when we need to or as required. Only the leader is permanent. ठीक है जी हो गया जनाब Yeah. कर रहे जनाब मैंने यही तो पूछा कि हो गया ऐसे ही तो चाहिए बंदे जो बोले कि नहीं समझ आया ऐसे ही तो बंदे चाहिए जो बोले नहीं समझ आया जनाब बोलो आपकी बारी है ना इन्होंने क्या बोला कहते यार जैसे हम लोग सेंट्रल लीडर भी करते हैं ना तो जो जनाब का क्वेश्चन है वो है ट्रेडिशनल प्रूनिंग पे ही अभी चला हुआ ठीक है उस पे भी हम ब्रांच रिप्लेसमेंट या ब्रांच रिन्यूअल करते हैं तो जब भी कोई ब्रांच यार अपनी उम्र से बूढ़ी हो जाती है ना या जब आप स्पर बूढ़े हो जाएंगे तो स्पर रिन्यूअल भी करते हैं उसी के साथ साथ आप ब्रांच रिन्यूअल भी करते हैं और वो हर सिस्टम में चलता है कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो इनसे अछूता हो और ये प्रकृति का असूल है जो अत्यधिक वो हो जाता है उसके बजाय नया ही आता है कोई और हाँ जी ब्रांच में किया नॉट लीडर हाँ जी सर देखो जो इनका सिस्टम है ना आप ये समझिए कि 5 से 7 साल की ब्रांचेज है 8 साल की 10 साल की और इनकी मैक्सिमम ब्रांचेज इतनी मोटी जाती है ठीक है ये हमारा सिस्टम है जो इसमें हमने मॉडिफाइड लीडर बड़े बड़े पेड़ डेवलप किए हैं तो उसमें भी करते हैं लेकिन फिर स्टेज वाइज होती है क्योंकि देखो हमने तो जितने भी अपने PCDOs भी किए अभी हम रोडू में भी थे जुबल में भी तो इनका जो मेजर है ना जी जो मॉडिफाइड लीडर में है ये मेजर काम करते हैं कि प्रूनिंग में कि धूप आनी चाहिए पहले तो अंदर
तो वो धीरे धीरे फिर उस तरह से बनाते हैं। ये एक बड़ा पेड़ अगर आपके यहाँ हो तो ये जो आपके प्रश्न है ना जी कि बड़े पेड़ में कैसे प्रूनिंग करनी है, आपके जितने के क्वेश्चन आ रहे हैं वो मॉडिफाइड ट्रेडिशनल सिस्टम के एक बड़े पेड़ की प्रूनिंग मांग रहे हैं आप लोग। तो अगर वो होता तो अलग होता। देखो जो इनमें सिस्टम होगा प्रिंसिपल वही होंगे, पर ये समझ लो कि उस बड़े पेड़ की एक टहनी नहीं है ये पूरा पेड़, उस पे हमने फेदर बनाए होते हैं सर, उस तरह से। क्वेश्चन हमारे ट्रेडिशनल पे तो था ही नहीं सर, आप गलत ले रहे हैं। आप गलत सुनो भाई साहब, इनका किसका सुनो, आपका आंसर पता क्या है जी? 40% से जो मोटी हुई ना लीटर से वो काट देनी है, मोटा होना है। हाँ, सीधा आपका मोटी होनी नहीं। इसमें विस्पर खत्म हो गया 2-3 साल में, तो 40% से मोटी होगी ना लीटर से, जहाँ से जैसे मान लो जहाँ लीटर यहाँ से ब्रांच निकल रही है आपकी, जब 40% से मोटी होगी ना तो इसको आप लेवल कट से काट दें, बस सीधी सी बात है। वो न्यू हो जाएगी वहाँ से। नहीं आ रहा उस पर तो दोबारा से ले आओ, यहाँ से टच कट मार दो इसमें, दोबारा आएगी टेनी। Let's talk about renewal pruning because let's make sure we understand it, okay? So I'm going to use this as a branch as an example, and I'm bringing it up here so it's easier to see, all right? So this branch, it hasn't been click-cutted. It has naturally, because of its pendant angle, developed lots of spurs, okay? Now, this branch is producing new shoot growth, so it has lots of energy to produce lots of good fruit. That's great. Now, if we imagine after 2-3 years, this will, and we will allow this to develop more side shoots. We will remove any shoots that are underneath because they are shaded and the fruit won't be good. And as this branch carries fruit for a number of years, we could expect that it will develop more spurs, and we will have to renew it in the sense of reducing the number of spurs that it has so that the fruit quality is maintained. Thanks. Anyone want to translate that? देखो सर, इसने इस ब्रांच का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये प्रॉपर नीचे से बेंड हुई हुई थी ना, तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा स्पर बने हुए हैं इस वाली डंडी में। लेकिन एक जब ये लंबी जाती जाएगी तो कुछ इसके स्पर बूढ़े होते जाएंगे, कुछ यंग आएंगे, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि इस ब्रांच की रिप्लेसमेंट होने को मांगेगी, या स्पर रिप्लेसमेंट करेंगे या ब्रांच रिप्लेस करेंगे सर आप। अब प्रिंसिपली ये जब इसके डाया से 50 से ऊपर हो जाएगी तो ये रिप्लेसमेंट मांगती है, रूल बोलता है, ठीक है जी, वो हो गया। दूसरी चीज़ कि जब आपके स्पर बूढ़े हो जाएंगे तो उस पर वीक फ्रूट आएगा, तो उसकी जगह आपको नई ब्रांच चाहिए होगी, तब आप इसको रिन्यू करोगे। नहीं तो अगर नई ब्रांच आएगी ना सर, तो इसके जो इतना स्पर बीमा है, हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं, स्पर बीमा अगर नया ब्रांच लेना है हमारे को तो हमारे को तो बैक जाना पड़ेगा, हाँ जी, क्योंकि वो ये बीमा तो मानेंगे नहीं, ठीक है जी। अगर हम बीमे पे तो वो शॉर्ट हो जाएगी, टहनी तो वहीं सूख जाएगी, ठीक है ना सर? नहीं, Can they go for spur renewal on these kind of branches? वो तो बेकार है ना फिर। स्पर रिन्यूअल बोल रहे ना? नहीं, वो तो बेकार है। जैसे ये चल पड़े हम, अगर ये भी खुला छोड़ दिया, इसमें तो आपका बीमा आ गया, ठीक है सर, तो हम नया शूट निकालना तो हमारे को बहुत, जो नई ब्रांचेज है, ठीक है नहीं, वो निकालना हमारे को टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें छड़ा ये बीमे से लोड है पूरा, ठीक है नहीं। देखो ये वाला काट देखो, ठीक है, ये काटा इन्होंने ना, हाँ बहुत टफ, स्पर में तो बहुत ही टफ है सर, रॉयल में आ जाएगी। क्वेश्चन का आंसर ये था भी जो इन्होंने बताया नहीं, कि आपकी जो है ना, जाना तो बैक ही पड़ेगा ना सर, मेरा भी यही है, जाना बैक पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है। दो टहनियां आपने एक सीजन में 2 टहनियों से ज्यादा नहीं काटी, ये रूल है इसका। ये तो मैं मान सकता हूँ। नहीं, अरे उसमें पता क्या है जी, उसमें ये है हैंग हो जाएगा पौधा, अगर ज्यादा लोड दे देंगे आप इसको, ज्यादा बीमे में ही ढाल देंगे तो वो तो हैंग हो जाएगा नहीं।
हाँ ठीक है जी, काटना भी पड़ेगा उसको कम, तब जाके उसमें ब्रांच आएंगे। अगर आप इसी तरह छोड़ते रहेंगे तो वो तो सूख जाएगा पौधा ही। If we cut at this point, new shoot will not rise. New shoot will not rise. These shoot will take growth, more growth. But we can't get shoot at this point. We can't. एक टाइम मैं काट देंगे वहाँ से शूट नहीं निकलता, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। I want to know what I want to know. When we want to replace this branch, we cut at this point. When we want to replace this branch, old one, yes, we cut at this point, but we will not get any new shoot because these branches will get growth more. These will become more vigorous, not shoot at this point. These branches will get more vigorous. Dominated. Yes. Very difficult. Very difficult. What according to you, Uncle, if there is a running cut every year, 1 feet growth and for information is also continue. Yes. Therefore, करके we need not to move it from अच्छा एक चीज या तो ऐसा इनको एक आधा पेड़ इनको अपनी तरफ से करने दो। हाँ जी हाँ जी हाँ, प्रैक्टिकल हो सकता है तभी। I tell you will not get any shoot at this point. थोड़ी demonstration देंगे ना, उसके बाद फिर we need shoot at this point. We need shoot at this point. How we can? सर Why not? इसमें ऐसा होगा ना, देखो There is open space. There is open space. There is open space. सुनो सर, ये जो एक्सपर्ट आया ना, इनको करने दो, फिर आपने क्वेश्चन उसके बाद करना चाहिए। Then after will be question session. Okay. On this. This one. Yeah, let's cut it. Okay. Yeah. Sir, you prune first. Then after we will ask questions from you. Okay. All right. When it's quiet. Please. शांत हो जाए। एक क्लियर करो ना, ये इसको प्राणी अपनी जो हमारा ट्रेडिशनल उसके साथ ना कंपेयर करो। ये हाई डेंसिटी का कंसेप्ट है, उसका ही बार-बार जोड़ के साथ मत रॉयल की ट्रेनिंग भी कर लेंगे एक पौधे की, साथ होगा। देखो सर, आपने बोला नहीं आएगी, दिस इज योर एक्सपीरियंस, है ना जी। लेकिन अगर ये शूट नहीं आएगी ना, तो ये जो टॉल स्पिंडल सिस्टम है बर्बाद है फिर, क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट प्रूनिंग चलती है। अब दूसरी We have to cut more branches. Then we can get देखो सर, वो बात अलग not single. लेकिन अगर हम ये बोले कहाँ चाहिए आपको मेरे को? At this point when we remove this branch. शूट चाहिए आपको मेरे को बताओ। At this point. हाँ ना, ये हमारे को जब बेवल कट काटते हैं ना, उसके अंडरनीथ से आपकी ब्रांच निकलती है। Mostly it is very difficult to. It's not difficult. बहुत नीचे से ना ये सर, पहले यहाँ निकलेगी अगले साल आप Single branch. ब्रांच बनाएंगे, Single branch. शुरू करो भाई, शुरू करो। ये जो बताना शेयर नहीं होना, हमारी अपनी गप पे इसको ज्यादा सुनाई दे। हमारी जरूरत इसमें कि इसको जो आता हो पकड़ लो, अपनी यहाँ पे रहने दो। All right. Okay, let's everyone just settle down a bit here. Just take a couple of deep breaths. It's okay.
What we want to encourage branching here. We've done a gentle heading cut here to try and force these to branch. We will remove any flowers that develop on any portion of the leader. We don't want any competition from flowering or fruit set. We won't be heading. We wouldn't shorten any of these shoots. The other option that we have when the sap really starts to move is to notch above some of the more viable, stronger looking buds to try and force them. And if we had Promelin available, Pearland, we could paint those buds to help force them to grow. Really, that's about all we can do, I think, unless anyone has any other suggestions. To develop. Let him talk. अब इसने क्या बोला सर कि जो भी ब्रांच आएगी ना, अगर वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है तो निकालेंगे हम उसको, अदरवाइज ये जो हम हेडबैक्स लेते हैं ना, देखो जो इनका सिस्टम है इसमें कहीं पे भी हेडबैक नहीं है, इसने खाली लीडर पे लिया है एक जगह। लीडर पे क्यों लिया? क्योंकि आगे लीडर ब्लाइंड जा रहा है, अगर उसको खाली छोड़ेगा तो लीडर सीधे ऊपर जाएगा, उसके नीचे की बड नहीं छूटेगी। तो वहाँ पर ब्रांचिंग एनकरेज करने के लिए एक तो देखो सर इसने हेडबैक लिया, दूसरी चीज़ आती है नॉचिंग कट, जो आजकल सारे कर रहे हैं, लगभग सबको लोगों को पता है। नॉचिंग में क्या किया जाता है कि जो आपकी बार्क है ना, छिलका, बस इसमें जो स्ट्रॉन्ग बड होती है ना, कोशिश क्या करनी 1 और 2 साल की वैसे डंडे पे, जो रिसेंट होगी उस पर ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आएगी, सेकेंड ईयर पे थोड़ा मुश्किल से आती है, लेकिन जो अच्छी बड दिखे आपको उसके ऊपर खाली बार्क में कट मारना है। कब? सैप फ्लो के टाइम पे, जब शुरू ही हो रहा होता है, मतलब मिड मार्च के आसपास, प्रोमलिन और वो भी कर सकते हैं, प्रोमलिन पीजीआर। दूसरी चीज देखो विदेशों में चलता है ये सिस्टम, हमारे पास अभी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन विदेशों में पीजीआर चल रहे हैं। पीजीआर में 6 BAB चलता है, प्रोमलिन ट्रेड नेम है, कोई परलान है, तो लोग आज की डेट में उसको इन नॉचिंग कट्स पे लगाते हैं, अपेक्स के साथ, पेंट के साथ, पेंट के साथ लगा दिया, वाटर इमल्शन पेंट के साथ लोग लगाते हैं, उसको एक डेफिनेट कंसंट्रेशन में मिला के लगा दिया। उससे क्या होता है, आपकी ब्रांचिंग एनकरेज होती है। और क्योंकि इस सिस्टम में क्या है, एक तो लीडर बनेगा, उसके अरे परे कंगी बना के रखनी है, उस कंगी में फ्रूट लगते रहेंगे, जब जो डंडा पुराना हुआ उसको आप रिप्लेस करते रहेंगे। सीन क्या होता है, हम सोचते हैं कि डंडे मोटे होंगे ज़्यादा बेटर फ्रूट होगा। इनका कुछ फोटोग्राफ्स है मेरे पास, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इनकी प्रेजेंटेशन के, तो उस पेड़ों की शक्ल देख के बंदा बोलेगा अरे तो पेड़ ही मरे हुए हैं कम्बा, बट स्टिल वो 25-25 किलो ऐसे पेड़ उनका फल देते हैं। इनका मेजर है क्वालिटेटिव यील्ड निकालेंगे, पेड़ ठीक है, ब्यूटी कंटेस्ट भी नहीं बनाएंगे। कुछ इनके फोटोग्राफ्स है, मैं शेयर करवाऊंगा आपको। ये रह गया, और इसमें फूल निकाल लेना है। ये जब फूल आएगा सर, तब इसका फूल काटेंगे, तो फूल में एनर्जी नहीं गई, फ्रूट नहीं बना, तो वो कहीं ना कहीं तो एनर्जी बनाएगा ना, तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। अगर मान लो यहाँ ब्रांचेस लेनी है, उसको काट दिया। Sir, one question, sir, what's the split? How many branches in a meter, sir? 8 or 9. Same question. Number of branches per meter or number of feathers per meter of the tree. In New Zealand it's 6, I think. Your thumb rule is 6 branches per meter, I think. It is 8 or 9 in New Zealand for young trees, and as they become mature, we reduce that to 6 or 7. Yeah. अब देखो सर, हमारा सबसे मेजर क्वेश्चन हर फील्ड में रहता है कि अगर हम ये सिस्टम करते हैं तो ब्रांचेस की दूरी आपस में कितनी रखनी है। तो इनके यहाँ क्या करते हैं, और जो हमारे भी PCDOs में चले हैं उसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि 1 मीटर में 7-8 इनिशियल ब्रांचेस से शुरू करते हैं। यानी कि देखो हम लोग पौधा ले जाते हैं, कोई 10 फुट बोलता है, कोई 12 फुट, तो तब रूल हो गया कि 1 मीटर में हम 7 से 8 ब्रांचेस रखेंगे। जब ट्री मेच्योर हो जाता है, Jack, age of maturity 5 to 6 years in your Yes, and it would be the same here with good management. Yeah. So 5 से 6 साल का जब आपका पौधा होता है तो 1 मीटर में उसके 7 से 8 डंडे आपने शुरुआत किए। जब 5-6 साल का होता है तो 6 से 7 डंडों पे बियरिंग लेके कुछ रिप्लेसमेंट में जाएंगे। अब आप चाहे पेड़ बनाओ 2 मीटर का, तो आपके पास एक नंबर ऑफ फेदर डिफाइन हो गया कि बॉस मैंने इतने फेदर पे काम करना है। इस पे सर कोई और क्वेश्चन? 1 मीटर पे 6 और 7 फेदर, 7 से 8 इनिशियली, फिर उसके बाद 6 रखते हैं जब पेड़ मैच्योर हो जाता है। उसके बाद रिप्लेसमेंट भी चलती रहेगी ना, है ना? और इसमें साइज की प्रून नहीं करनी है। नहीं, नो हेडबैक, हेडबैक है ही नहीं है। अगर आप फ्लिक भी करते हो तो भी स्पर ही फॉर्म करवाते हो ना। अच्छा, हाँ जी। इस वैरायटी में मैच्योरिटी लगभग कितने सालों के बाद मानी जाएगी?
सर 5 से 6 साल नहीं तो सर ये तो मतलब डिपेंड करेगा कि रूट स्टॉक कौन सा है। लाइक इफ यू आर यूजिंग M9 तो उसमें तो और M111 उसमें तो डिफरेंट रहेगा, वो विग्रस क्वालिटी है। ये M9 क्यों रही है सर? इसको मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो M9 पे आप क्वेश्चन लेके आए, इट इज ए प्रिकॉशियस, वो ट्री को अर्ली बियरिंग में लाएगा। अच्छा जी। पर ऐसा तो नहीं होगा कि वो स्पर क्या कहते हैं 6 महीने में बनाएगा। स्पर फॉर्मेशन की तो साइकिल है ना, 1 साल लगेगा, फिर दूसरे साल रिड्यूस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ आएगी, फिर तीसरे साल आपको फ्रूट बनेगा स्पर पे। जी जी। है ना जी? तो वो उस साइकिल को नहीं खत्म कर रहा है, वो खाली ये कर रहा है कि स्पर ज्यादा बना रहा है, वो स्पर बनाने की एज नहीं कम कर रहा है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन पता क्या है, मैं M111 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उसमें जो आपकी साइड ब्रांचेस आई ना, इसको तो प्रून करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसको अनटॉप ही छोड़ेंगे? खाली छोड़ेंगे। मैं आपको सर, मेरे दोस्त का है जुबल में एक बगीचा ऑन रोड है बाकायदा, 111 का आपने एग्जांपल दिया, 111 पे उसने स्पिंडल बनाया हुआ है। डॉक्टर खाक्टाज ऑर्चर्ड 11111 spindle system where you advised that it would be needing support if it goes like this. Yes. So last year we were there. Yes. Yeah. On the road head in Jubal. Yes. We have been to that. तो वो उस पे भी सेम है सर। देखो ये मत परेशान हो रूट स्टॉक क्या है, ट्रेनिंग प्रूनिंग एक सिस्टम है। सीडलिंग पे भी देखा है मैंने, यही टॉल स्पिंडल सिस्टम चढ़गांव में लगाया है जी बंदे ने, जो सबसे पीछे को काम कर रहे हैं। ये सिस्टम है, अगर स्पिंडल है तो यही बनाना है, सेंट्रल लीडर रखना है, मॉडिफाइड है तो इसमें भी और 4-5 लीडर बनाएंगे। तो सर वो सिलेक्शन हम गैप के मुताबिक कर सकते हैं। अगर हमने गैप जो डिस्टेंस हमने उस हिसाब से। पर इनका ठीक क्वेश्चन है, जब तक कैनोपी नहीं बनी ना, अगर आप उसको हेड बैक तो स्टन हो जाएगा पेड़। इनका ये कि तब तक उसको, जब तक हमारी कैनोपी जो स्पेस अलॉटेड स्पेस है उसके बाद मेरे हिसाब से फिर भरना पड़ेगा ना सर, क्योंकि उसकी तो विग्रस हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक है उसका, क्योंकि स्पेस है हमारे पास। हां जी हां जी। अच्छा M9 में तो 3 फुट हो जाएगा। हां जी हां जी। 106 का प्लांटिंग डिस्टेंस भी थोड़ा ज्यादा रहता है सर, HDPs में 111 का थोड़ा और रहता है सर। इवन अभी सारा साहब आपने भेजा था हमें मशोबरा ना, तो जो मैडम है उन्होंने, हम जब विजिट करवाया जी ना उसमें, तो उन्होंने कहा कि आपको सबसे वीकनेस इसमें क्या लग रही है M9 का जो लगा था जी ना, तो कोई प्रूनिंग पे जाए जी कोई, तो उन्होंने बोला कि जो स्पेस है जी, कहते मेरी नॉलेज के मुताबिक इवन M9 के लिए भी वो एनफ नहीं है, जिस इनपुट में जो लगा ना जी, तो उसके लिए भी इवन वो काफ़ी नहीं है। 1.5 मीटर। देखो यार इसमें ऐसा है, अगर स्पेस कम होगा तो इनइटली आई थिंक दे आर प्लांटिंग ऑन 2 feet डिस्टेंस on M9. दो फुट में कर रहे हैं। They are trying to go for ultra high, we have seen that in Mandi. Yes. लेकिन then it is बॉल टाइप बनी वो देखो ये सिस्टम है ट्रेनिंग का पेड़ का। अब बंदे ने अगर आधे फुट पे लगाया तो वो लीटर पे ही फसल बनाएगा, उसके बाद स्पेसिंग जो अलॉट है उसी पे जाना है। तो आपने जो स्पेस लिया है वो लिया, आप उसके अनुसार देखो, ये कंफ्यूजन नहीं लेना। एक पे भी किसी लेना चाहते हैं, आपको वो डिपेंड है, स्पेस ज्यादा देंगे तो ज्यादा। अभी इसमें कई जगह पे आप लू जाओ, वहाँ पर HDP का सर बंदे का बगीचा है, वहाँ भी हम गए, उसके पास भी हर पेड़ से 20-25 किलो माल उतर रहा है। छोटा करना पड़ेगा, 5 बीघे का छोटा जैसा ऐसे लगा। Well, I'd just like to finish an explanation about renewal pruning. If Yes, that's okay. yes. Yeah. Okay. And might be some repeating here, but the messages are important. So the current practice that we often see in Himachal for young trees are planted, and then they get pruned, and then they grow a little bit, then they get pruned, and then they grow a little bit, and they get pruned, and it's just delaying the production of the canopy. It's stiffening up the branches that makes them unfruitful and upright, and so the challenge is to stop that and to step back and let the trees grow, train the branches, and make use of all of the growth that the young trees make. सर ये समझ आया रिन्यूअल प्रूनिंग। अब देखो मैं बताता हूँ जो ये कहना चाह रहा है, ये फिर हमारे पे वही हेडबैक वाला क्वेश्चन है। देखो हम लोग जब हम एक सिस्टम से आए हैं सर, हमने 20-25 साल से जो सीखा उसमें ये है कि पहले हम 7-8 साल पेड़ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एविडेंटली जब हम ये भी काम करते हैं तो नॉर्मली इनका ये है कि तुम जहाँ भी करते हो ना, सबसे पहला काम करते हो दे हेडबैक शुरू करते हो। ये हमारा प्रूनिंग स्टाइल है, हमने यही सीखा, हम यही जान सकते हैं भाई, हमारे को यही आया, यही बताया गया कि ग्रोथ बनाते रहना है पेड़ का।
लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं है। ये लोग पेड़ को 4-5 साल से उत्पादन लेना शुरू करते हैं। सर का एक यहाँ क्वेश्चन था कि यार जब हम फ्रूट लेना शुरू करेंगे तो पेड़ तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन सर प्रूनिंग इसलिए की जाती है कि आप बैलेंस बनाते हैं फ्रूट ग्रोथ का और वेजिटेटिव ग्रोथ का। भाई साहब थे यहाँ पर, कहाँ चले गए? तो जब उन्होंने बोला था कि ये डंडा छोड़ देंगे तो ये तो सारे फ्रूट बनेंगे। अब अगर ये फ्रूट है सर, देखो विदेशों का सिस्टम बताता हूँ, नई वैरायटी आती है 15 साल मार्केट में रहती है या 10 साल मार्केट में रहती है सर, उसके बाद ये लोग वैरायटी बदल रहे हैं 20 साल के बाद। ऐसा नहीं कि रूट स्टॉक पूरा पटा जाता है, उसी पे काट के ये लोग भी टॉप ग्राफ्ट्स कर रहे हैं, इसी रूट स्टॉक पे कर रहे हैं जो तब का लगा हुआ। अब अगर ये ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ बनाएंगे तो 50 साल तक वो वैरायटी बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी ना सर, तो फिर रेट कैसे मिलेगा? दे आर एक्सपोर्ट बेस्ड नेचर। इन्होंने तो औरों को खिलाना है, खुद तो नहीं है इनके पास इतनी खपत जैसी हमारी है। तो हम लोग तो इसीलिए परसिस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी अपनी मार्केट है, लेकिन कल को अगर हम बाहर बेचेंगे तो हमें उस कंज्यूमर का स्वाद बेचना पड़ेगा। गाला बाहर से आता था, नहीं था पहले इतना पॉपुलर, पिछले 8 साल में गाला ने एक अपनी पहचान स्थापित की है सर मार्केट में, इसलिए ना लोगों को टेस्ट लग गया जूसीनेस का। ग्रेनी स्मिथ काटा, अब दब के वापस आ रहा है फैशन में, ऐसी है सर। तो इनके यहाँ जो मेजर है सिस्टम वो यही है कि शुरू किया 4-5वें साल में फ्रूट शुरू किया, जब वैरायटी बदलनी है तो फिर नई वैरायटी बदल दी उसी टाइम। यील्ड लेनी है, हमारा काम पेड़ बनाना नहीं है। ये हमें बोलते हैं तुम लकड़ बना रहे हो, और इनके इतने जैसे पेड़ पे इन्होंने फोटोग्राफ दिया है जो हम बोल रहे हैं ना वो 10-12 फेदर वाला, और उसी की फोटोग्राफ दिखाई है इन्होंने फ्लावरिंग पे भी सर, उसके बाद फ्रूटिंग पे भी, और दब के फ्रूट होता है, कोई ट्री कहीं नहीं जाता। हमारा सिस्टम है कि हम पहले वो बनाते हैं, इन्होंने सीख लिया है कि एक डंडा रखना, उस पर अरे परे जो भी डंडा है फ्रूट ही बनाना है उस पर। दूसरी चीज़, जब आप फ्रूट ले जाना शुरू करेंगे ना सर इन डंडों पे, तो ये डंडों की मोटाई नहीं जाएगी। तो जो अभी हमारा क्वेश्चन है, देखो जब हम लोग ले रहे हैं कि हमें तो यार ये बराबरी के आगे, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई पेड़ की, अगर प्रॉपरली बैंड जाता है तो ये इतना मोटा नहीं घूमेगा शुरुआत से, ये मोटा होता जाएगा। इनके जो लीडर्स हैं वो इतने मोटे होते हैं, लेकिन फेदर्स इतने ही पतले होते हैं सर। ठीक है सर, Okay, please carry on. New, yeah. So just on to finish on renewal pruning. Yes. So it's how we manage the fruiting branch through its life cycle. Each fruiting branch is temporary, but we want to make use of it for as many years as we can. So as it's carried fruit for a number of years, and if it's a pendant branch like this, we will see that the amount of new shoot growth made at the end of the branch will reduce, and the branch will develop higher numbers of spurs, and if we leave all of those spurs individually, they'll become weaker and the fruit they produce will be smaller. So when that's starting to happen, when the extension being made at the tip of the branch is reducing, that's when we say we renew it, which means we can shorten it back to strengthen it up. But we don't do that until we see that it's running out of steam or running out of gas. How much shortening do you want to show? Well, it's a little bit of a judgment call. Yeah, tell that judgment. Well, when we see that the new shoot extension is less than maybe 4 inches, then that can be a sign that we have to shorten it to push a bit more vigor back into the branch. And eventually, is it time to translate? No. Eventually, there comes a time when this branch is renewed, which means it's removed, and other younger branches will get their turn to produce the crop. And if we make a bevel cut, we would like to see new shoots from there, and they'll develop through that whole process to carry the crop. We have to shorten it also. Yeah. Well, we're only going to shorten it back. The growth is 4 inches, less than 4 inches. Yeah, when the new growth at the tip has reduced down to something like 4 inches, then we're starting to shorten it to rejuvenate it. What is the ideal growth for fruit bearing tree? Overall, I guess as a young tree, you want to see a foot or foot and a half of new growth over the tree, and then when it's into fruit bearing,
really you want to be 4 to 6 inches would be ideal. So when we have to replace approximately this, 6, when we have to replace it, it means that it is now, there's no growth now. So then we can replace it. वो रिप्लेसमेंट का तो वही है ना, फिर मोटा वाला फंडा इसको आप शॉर्टन करेंगे, फिर पीछे को हटेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे। नहीं, जो सर स्पर्स लगते हैं ना इसमें, उसका कितना टाइम रहता है, मतलब कितने टाइम तक स्पर्स वो मतलब ओल्ड हो जाते हैं कि भाई अब नहीं है वो फ्रूट जाएंगे? सर इसको मैं सिस्टमेटिकली उठाता हूँ। देखो सर, इसने एक अभी हमने बोला हेड बैग नहीं लेते हैं सर। अब इसने एक हेड बैग सिस्टम अगर इसमें प्रैक्टिस करना है तो कहाँ लगेगा वो बोलो। अब नॉर्मली जब हम नए साल की 1 साल की ग्रोथ लेते हैं सर, विगरस वैरायटी में वो 2-2 फुट 1-1 मीटर भी जाती है। लेकिन जब हम स्पर की वैरायटी बात करते हैं तो यंग ट्री में वो लगभग 1-1.25 फुट बहुत होती है विगरस ग्रोथ। और जब वो फ्रूट देना शुरू कर देता है तो 6 इंच से लेकर 8 इंच तक बढ़िया मानी जाती है। लेकिन जब यही फेदर की ग्रोथ आपकी 2 से 4 इंच पे आनी शुरू हो जाए, तब यानी कि वो डंडा वीक हो गया, ठीक है, उस पर फ्रूट बहुत लगे। अब अगर उस डंडे को खाना नहीं मिलेगा ना तो उस पर वीक फ्रूट लगेगा, तब उस वो जो 2-4 इंच की ग्रोथ आती है ना, तब उस पर हम हेड बैग लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सारे स्पर बूढ़े होंगे। अब स्पर की जिंदगी क्या होती है? बेस्ट फ्रूट लगता है 2 से 5 साल की उम्र के स्पर। अच्छा, बेस्ट क्वालिटी फ्रूट ऑन 2 to 5 years per. Yes, but so long as spurs are in a good light environment, they can continue to produce good fruit for longer than that, for 6 or 8 years. That's been proven. Yes, but if the tree becomes too dense and shady, then those spurs are weak and they can't produce good fruit. So sun penetration or good health is important. Absolutely, yeah. गाला ट्रीज में सेम होगी प्रूनिंग और टेक्निक? गाला पे अलग से आएंगे बॉस। गाला की अपनी प्रॉब्लम्स है क्योंकि वो फिर पेड़ अलग से रखना था, तो करेंगे, इस पे भी आएंगे। गाला ग्रेनिंग पे प्रूनिंग टेक्निक इनकी सेम है, पर इनके अपने वैरायटीज के कैरेक्टर में भटक जाऊंगा फिर यार यहाँ ना। अब देखो सर, जब 2 से 2.5 इंच 4 इंच तक ग्रोथ आ गई, तब ये कह रहा है हल्की हेड बैक करेंगे। लेकिन अगर हेड बैक भी करोगे तो ये फिर और मोटा तो धीरे धीरे होगा ही, और वीक स्पर्स भी होने शुरू हो जाएंगे। अब क्या है, आपके पास 15-16 डंडे पड़े हैं, अब आपके पास एक सिलेक्शन आ जाती है, यार यंग बेटर स्पर्स जाए वहाँ बढ़िया क्वालिटी, देन यू गो फॉर रिन्यूअल फाइनली। ये आया सर? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा सर, एक चीज़, अगर मान लो रिन्यूअल करेंगे उसमें क्या कैंकर प्रोन तो नहीं हो जाएगा ज़्यादा? सर देखो, कैंकर बीमारी है जी, कैंकर बीमारी कट से तो नहीं, इलाज ही करना पड़ता है जी। नहीं मान लो कट से, हैवी कट से उसका, हाँ जी, उसमें हैवी कट यहाँ पे आएगा जी जी, नहीं आएगा जब आप ठोंड रखते हैं ना तो कैंकर आता है, ठीक है। वो जब आप नजदीक से काटेंगे तब कैंकर आता है, ठीक है। अच्छा, मतलब जो केमिकल केयर लेनी पड़ेगी, याद रख लो, यू कैन नॉट अवॉइड इट। ठीक है, कैंकर जहाँ धूप लगती है आते हैं, एप्रोप्रिएट केयर मैनेजमेंट ही इस चीज को हटाएगी सर। ठीक है सर। ये कहना कि कैंकर बिल्कुल नहीं आता, मैं तो नहीं बोलूँगा सर, क्योंकि बीमारी है, बीमारी आती है बगीचे में। इतने सारे पेड़ लगाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी तो पल। सर कुछ लोग तो कहते हैं जी कैंकर कोई बीमारी नहीं है, ये तो कैंची से आया, काट काट काट। 8 प्रकार के कैंची से आया, कैसे आया? ये कैंकर वाली बीमारी से डंडी काटी, अब ये चला पे दूसरी डंडी पे, फिर तीसरी पे। कैंची से ऐसे नहीं आया, बीमारी है, फंगस भी है, बैक्टीरिया भी है, और भी है। इसके 6 प्रकार के तो यहीं पर कैंकर है। टोटल हमारे यहाँ 12 कैंकर लगते हैं। अभी अगर यहाँ पे ये पीछे से प्रैक्टिस ये सही होती ना, तो इतना ये डच नहीं करना पड़ता है। क्यों? अगर ये नहीं उगने दिया होता ना फ्रूट जी पहले ना, तो आज सर तो क्या करें, नया सिस्टम है, अब तो सीखना है ना, सीखती बारी पहले क्वेश्चन नहीं हुआ सर, माय क्वेश्चन ठीक वाला पहले से फिर कहाँ ना था इन जो हो चुका सर, लाइक जो ये वाला शूट है ना, ये तो उसमें एंगल कम नहीं है सर। अच्छा, इस इधर पीछे ऐसे झुकाना पड़ेगा, एक बेंडिंग। एक मिनी ब्रांच ठीक है, सब उड़ा देने। अच्छा, नहीं छोड़ने की कुछ। जैक, Yes. Done over this tree. Yeah, if there's, is that a gala tree over there we can look at? Or? Gala has it? Gala is there. Questions coming about Gala? Sir, this is not necessary in this variety. What's that? This is not necessary in 106. अगर tall spindle No. Orchard आपका
We have to support trees. Yes, on M9 you have to support them. 106 is self-supporting. So there is no need to support them these trees. Well, it is a good idea to have one wire to keep the tree straight. Otherwise, if the wind or the rain, the whole tree might, but it won't break. But it's good to As you can subject.